नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे गुजरात के बड़ौदा की, जहां निमेटा गांव में नई ग्राम पंचायत का लोकार्पण किया गया। साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां मुस्लिम महिलाएं तिरंगा बनाकर हर घर तिरंगा अभियान में दे रही हैं अपना योगदान। वहीं पलामू के तरहसी प्रखंड में संचालित योजनाओं की उपायुक्त द्वारा की गई समीक्षा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गुजरात से है, जहां बरोड़ा बागोड़िया के निमेटा गांव में नई ग्राम पंचायत बनाई गई। उसका लोकार्पण आज किया गया, जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट, बागोड़िया धारा सभ्य धर्मेंद्र सिंह बाघेला और नीलेश भाई पुराणी, शांतिलाल भाई रबारी, योगेश भाई पटेल, राजू भाई अलवा और गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। देशना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा मेरी मिट्टी मेरा देश आ कार्यक्रम दरेक गाम पंचायत में करवामां आवे एवुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आ काम मेरी मिट्टी मेरा देश आ कार्यक्रम द्वारा गाममांथी घरे घरेथी माटी या तो ચોખાના દાણા એ લઈ અને માટીનું જ મટકું હોય અને એ માટલામાં ભેગી કરીને એક કાર્યક્રમ દ્વારા ગામના લોકોને સાથે લઈને 75 વૃક્ષનું વૃક્ષારોપણ થાય, એની સાથે સંકલ્પ થાય, એની સાથે સાથે જો કોઈ આર્મી મેન હોય, એ શહીદ થયા હોય કે ક્યાં તો પોલીસ કર્મી હોય, તો જેમણે રાષ્ટ્રની સેવા કરી છે એવા કોઈક વ્યક્તિ હોય અને એણે જીવનનું સમર્પિત કર્યું હોય, તો એ તકતીમાં એમનું નામ લખાય, એમને શ્રદ્ધાંજલિ અપાય। આ કાર્યક્રમ આપ્યો છે। એની સાથે હર ઘર તિરંગા, એટલે ગયા વર્ષે પણ આપણે સૌ દેશવાસી અને એમાંય ગુજરાત અને વડોદરા મારી લોકસભા આ તમામ ઘરના લોકોએ પોતાના ઘરે તિરંગો લહેરાવ્યો હતો। આ વખતે ફરી સૌના ઘર પર તિરંગો હોય એવું એક આહવાન આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ કર્યું છે। તો એની સાથે 14મી ઓગસ્ટ એટલે વિભાજન વિભીષિકા સ્મૃતિ દિવસ। આપણા દેશમાંથી આઝાદ દેશ થયો, પરંતુ આઝાદી પછી જે રીતે દેશના ટુકડા થયા અને આપણા ત્યાં રહેવાવાળા લોકોને પોતાની સંપત્તિ છોડીને ભારત દેશના જે શહેરોમાં એમને ફાવે પહોંચ્યા ત્યાં એ પહોંચ્યા, કેટલીય યાતના પછી તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા છે। તો એ કાલનો 14 ઓગસ્ટનો દિવસ છે। તો એ પણ આપણે શહીદોને નમન વંદન કરીએ, એમને યાદ કરવાનો દિવસ। તો સાથે આ શરણાર્થીઓએ જે રીતે દુઃખ ભોગવ્યું, તો એમની સાથે પણ વાર્તાલાપ થાય, આવનારી પેઢીને આપણા ભારતનો ઇતિહાસ પણ ખબર પડે। તો એ આવતોકાલનો દિવસ છે। સાથે આજે નિમેટામાં તાલુકા પંચાયતનું ઘરનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। તાલુકા પંચાયતનું ઘર સરસ હોય એવી ચિંતા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી છે। પંચાયત ઘરથી ગામના લોકોને પડતી સમસ્યા એટલે સરપંચ પણ સાંભળી શકે, તો સાથે સાથે તલાટી પણ બેસીને એ સમસ્યાનો નિકાલ થાય, એના માટેનું સુંદર મજાનું અહીંયા પંચાયત ઘરનું આજે લોકાર્પણ નિમેટા ગામને સમર્પિત કર્યું છે। હું યોગેશભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। ગ્રામજનોને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું કે તેઓ પોતે પણ એક વિકસિત ભારત બનાવવામાં, વિકસિત નિમેટા બનાવવામાં, વિકસિત ગુજરાત બનાવવામાં એમનું યોગદાન આપી રહ્યા છે। સૌને નમન ને વંદન, ધન્યવાદ। કાર્યક્રમમાં આજે માન્ય સાંસદ વાઘોડિયાના પ્રવાસે હતા। એમાં સવારે બાકરોલ હનુમાનપુરા ગામના અંદર આ કાર્યક્રમ કર્યા। ત્યારબાદ નિમેટા ગામમાં પ્રાથમિક શાળાનું નવું બિલ્ડિંગ અને સાથે સાથે પંચાયત ઘરનું નવું બિલ્ડિંગ એના લોકાર્પણ માટે આજે માન્ય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે। એ પ્રસંગમાં ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ બાપુ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। સાથે સાથે તમામ જિલ્લા પંચાયતના 4 સદસ્યો, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ અને મહામંત્રી એ સર્વને હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને પત્રકાર મિત્રો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે। તમામનો હું આભાર માનું છું। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ। આજે નિમેટા ખાતે પંચાયત ભવન માન્ય ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના ગુજરાતના વિકાસના રોલ મોડલ તરીકે આજે જે પંચાયત ભવન બનાવવામાં આવ્યું છે, તમામ પ્રકારની નવી ટેકનોલોજી, કોમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ સાથે
ગ્રામજનોને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે અને ખૂબ સરસ રીતે અને સરળ રીતે લોકો કામ કરી શકે અને એનો ઉપયોગ કરી શકે એવું આ સરસ મજાનું ભવન માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીના રોલ મોડેલ તરીકે નિમેટાને જે લાભ મળ્યો છે એનું આજે ઉદ્ઘાટન માન્ય સાંસદશ્રી, ધારાસભ્યશ્રી અને તમામ જિલ્લા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ અને ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહીને આજે જે આનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું અને આ તમામ લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા એ બદલ હું દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એમને રોલ મોડલ તરીકે મારી વિધાનસભાના નિમેટા ગામને આ પંચાયતનું નવું ભવન આપ્યું એ બદલ માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। भारत देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। सरकार स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। तिरंगा बनाने से लेकर खरीदने के लिए लोगों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद भी अहम योगदान दे रहा है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री द्वारा मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट विधानसभा में सार्वजनिक की गई थी, जिसके बाद मुरादाबाद के गंगा जमुना तहजीब पर सवालिया निशान लग रहा था। किंतु एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस बात को मजबूती प्रदान कर रही है कि 13 अगस्त 1980 के दंगों से अब हम बहुत आगे आ गए हैं। आमतौर पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक झगड़े को लेकर खबरें चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली मुस्लिम महिलाएं तिरंगा ध्वज बनाकर अपनी अनूठी पहचान बना रही हैं। मुरादाबाद के कई तंग गलियों में आजकल हर कोई व्यस्त नजर आ रहा है। जो महिलाएं अक्सर घर में दूसरा काम करती दिखाई देती थी, खाना बनाती नजर आती थीं, आज उनके हाथों में सिलाई मशीन व कैंची है तथा देश का तिरंगा है। मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला शहर है। यहाँ की ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं देश का तिरंगा झंडा बना रही हैं। महिलाएं अपने छोटे छोटे घरों में तिरंगा बनाने के काम में जुटी हुई हैं। देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा बनाने का काम तेजी से जारी है। देश के हर घर की छतों पर तिरंगा फहराने में योगदान के लिए मुरादाबाद में झंडा बनाने का काम हो रहा है, तो वहीं इन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे उनकी आमदनी भी हो रही है। सरकार द्वारा उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे वे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की आभारी हैं। महिलाओं ने आगे कहा कि हम सुबह से शाम तक लगभग 150 से 200 पीस झंडे तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें अलग अलग रेट मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि हम अपने देश का झंडा तैयार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आने वाले वक्त में हिंदू मुसलमानों के बीच दूरियां कम होंगी। किस तरीके की तैयारियां हैं 15 अगस्त को लेकर? 15 अगस्त की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है सर। हाँ, इधर देखो। योगी जी और क्या नाम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें रोजगार दिया और कारोबार दिया, क्योंकि जो पहले काम नहीं कर रही थी महिलाएं आज 15 अगस्त के मतलब लगी पड़ी हैं घर में, बच्चे भी लगे हुए हैं। इस टाइम बस 15 अगस्त का इंतजार है। तो क्या तैयार कर रहे थे तिरंगा? हमें 5000 झंडा का ऑर्डर मिला था। अच्छा, और हमने कुछ तैयार कर दिया और कुछ तैयारी पे चल रहा है। तो क्या लगता है इससे जागरूकता भी आएगी लोगों में? जागरूकता आ रही है, बहुत आ रही है। कभी 15 अगस्त को कोई जानता नहीं था और अब झंडों को उससे के पता चला कि हाँ 15 अगस्त आ रही है। पहले लोग कहाँ इतना जानते थे। सब घर घर तिरंगा सब लगेंगे घर घर तो? तिरंगा लहरेगा, तो छतों पे सबके तिरंगा लहरेगा। अच्छा, सरकार की योजना अच्छी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। और रोजगार सबसे बेहतरीन है कि रोजगार मिल गया है, क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग क्या है कि ऐसे ही रहते हैं। अब ये रोजगार औरतें भी कर रही हैं तो कमाई तो डबल हो ही रही है। आदमी भी कमा रहे, औरतें भी कमाए, तो रोजगार तो बढ़िया है ही। उनका धन्यवाद है। शबाना किस समूह के थ्रू मैं आपका? तन समूह से जुड़ी हुई हूँ और इस समूह में 10 लोग जुड़े हुए होते हैं और ये 15 अगस्त के लिए तिरंगे बनाए जा रहे हैं और इससे हम लोगों को रोज़गार मिल रहा है। घर घर तिरंगा लगाने की ये योजना है, किस तरह आप देखती हैं इस योजना को? इससे हम लोगों को रोज़गार मिल रहा है और घर घर जागरूकता फैल रही है और इससे कुछ फ़ायदा ही हो रहा है घर लोगों को। अच्छा, सरकार ये योजना लेके आई है, ये अच्छी योजना है? ये अच्छी योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है। इससे आत्मनिर्भर हो रही हैं औरतें, कुछ सीखने को मिल रहा है हमको। और मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये आप समूह से जुड़ी हैं तो ये तिरंगा बनाया जा रहा है, कितने तिरंगे बनाने का ऑर्डर मिला है? ये 5000 तिरंगे बनाने का ऑर्डर मिला है। हम लोगों ने कुछ डेट बना दिए हैं और कुछ अभी चल रहे हैं, अभी अनकम्प्लीट है।
लगता है इससे लोग जागरूक होंगे 15 अगस्त मनाने को लेकर। पर आएंगे हम लोग 15 अगस्त। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद ईदगाह गोलीकांड ने सैकड़ों मासूम व बेगुनाह लोगों को ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए शहीद कर दिया गया था, जिसमें मासूम बच्चे भी शहीद हुए थे। ये एक सांप्रदायिक दंगा नहीं था, बल्कि पुलिस व प्रशासन द्वारा मुसलमान के खिलाफ एक पूर्ण नियोजित दमनात्मक व जालिमाना कार्रवाई थी। इस ईद का गोलीकांड की जांच के लिए जस्टिस MP सक्सेना आयोग का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 40 वर्षों बाद यूपी सरकार द्वारा सदन में रखी गई, जिसमें प्रशासन व पुलिस को क्लीन चिट दी गई है, जबकि मुस्लिम लीग के डॉक्टर शमीम अहमद खान को मुजरिम बनाया गया है। ये रिपोर्ट सरासर झूठी तथ्यों पर आधारित है तथा असल मुजरिम पुलिस व प्रशासन को बचाने के लिए बनाई गई है। आज 43 वर्ष गुजरने के बाद भी मजलूमों को कोई इंसाफ नहीं मिला, न ही गोलीकांड के मुजरिमों को कोई सजा और न ही शहीदों के वारिसान को कोई मुआवजा। एक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक देश के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। केवल मुरादाबाद ही नहीं, मुजफ्फरनगर नसबंदी कांड 1976, मेरठ के मालियाना हाशिमपुरा कांड 1987 के मजदूरों को भी आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। आज तक देश में जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने भी इन मजदूरों को इंसाफ देने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मुस्लिम लीग सरकार द्वारा मुसलमानों के साथ किए जा रहे पक्षपात पर विरोध प्रकट करती है और मुतालबा करती है मुरादाबाद ईदगाह गोलीकांड 13 अगस्त 1980 की उच्च स्तरीय अदालती जांच कराई जाए। इस गोलीकांड में मुस्लिमों के खिलाफ मुकदमे कायम कर कार्रवाई की जाए। इस गोलीकांड में शहीदों के वारिसान को उचित मुआवजा दिया जाए और शहीदों के वारिसान को सरकारी नौकरी दी जाए। इसमें कौसर हयात खान, राष्ट्रीय सचिव इरशाद हुसैन एंड जिला अध्यक्ष मोहम्मद असरार, शहर अध्यक्ष जमाल आलम, शहर सचिव गालिब अली, शहर सचिव आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम कौसर हयात और मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी मुस्लिम लीग। हम हर साल 13 अगस्त 1980 को जो यहाँ पर ईदगाह के अंदर गोलीकांड हुआ था, उसके सिलसिले में हम अपनी मांगों को लेकर के उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो मुजरिम हैं उनकी निशानदेही की जाए, उनको सज़ा दी जाए और जो मुतासरीन हैं उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए। इस मांग को लेकर हम पिछले 30-35 साल से लगातार सरकार को अपना मांग पत्र देते आ रहे हैं। पहले हमारे प्रोग्राम ईदगाह के ऊपर भी होते थे, उसके बाद फिर कुछ पिछले साल से हमने ये यहाँ कलेक्ट्रेट में अपना मेमोरेंडम देना शुरू किया है। तो हमारी मांग ये है कि निष्पक्ष जांच हो। जिस तरह वहाँ का वाक़या हुआ वो कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था, सिर्फ पुलिस एक्शन था। ईदगाह का वाक़या 13 अगस्त 1980 को वो कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था। पुलिस का सीधी फायरिंग थी और बिला वजह पुलिस ने सीधी फायरिंग की थी। हम ये कहते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती की थी उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसको सरकार ने कहीं ना कहीं माना भी थोड़ा बहुत कि PAC पर 30 साल तक बैन लगा रहा। 2011 तक यहाँ पर PAC पर बैन लगा रहा। जो हमारी मेन शिकायत थी कि PAC ने बेपनाह जुल्म किया, पुलिस ने जुल्म किया, तो उस पर बैन भी लगाया सरकार ने। तो इसका मतलब हमारी बात को माना गया कि वो वाकई उन्होंने जुल्म किया है। लेकिन अब 40 साल के बाद जो जिस तरह से अचानक उस वक्त सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को इस वक्त मंजर आम पे लाया गया, जो किसी को नहीं पता था कि उसने कोई रिपोर्ट दी है या कुछ किया है, तो उसमें सरकारी अधिकारियों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, सबको क्लीन चिट दे दी गई, सबको निर्दोष साबित कर दिया गया। और मुसलमानों के 2 लीडरों डॉक्टर शमीम अहमद साहब और डॉक्टर हमीद हसन खां पर इल्ज़ाम रख दिया गया कि इन लोगों ने साहब यहाँ दंगा कराया था। तो दंगा तो था ही नहीं। दंगा कराना तो जब दंगा हो तो पुलिस फायरिंग थी, सीधी पुलिस फायरिंग थी। नमाज़ पढ़ने आए थे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर और नमाज़ पढ़ते हुए आपने फायरिंग की। तो ये तो कहीं से कहीं तक दिमाग में भी नहीं आ सकती कि ईद के दिन जो लोग नमाज़ पढ़ने आए हैं तो वो लोग दंगा करने आए थे या दंगा करेंगे, ये तो बात कोई सोच भी नहीं सकता। तो वहाँ पर एक ही स्पॉट पर सीधी फायरिंग करके बिला वजह और लगभग 300-400 आदमी वहाँ मार दिए गए, जिसको आयोग कहता है कि सिर्फ 83 आदमी मारे गए। इतनी बड़ी झूठी रिपोर्ट बनाई गई आयोग ने, और वो झूठी रिपोर्ट सिर्फ इसलिए कि अधिकारियों को बचाया जा सके, पुलिस को बचाया जा सके, PAC को बचाया जा सके, उनको क्लीन चिट देने के लिए ये बनाई गई। और इसका सबूत ये भी है
कि सन 83 में रिपोर्ट पेश हुई और इसको बंद का अलमारी में रख दिया गया, अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया गया। तो अगर ये रिपोर्ट सच्ची थी तो उसी वक्त मंजर आम पे आनी चाहिए थी, उसी वक्त जो उनके नज़दीक दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन वो जानते थे कि हमने झूठी रिपोर्ट बनाई है, सरकार जानती थी, एडमिनिस्ट्रेशन जानता था, पुलिस जानती थी कि रिपोर्ट बनाया झूठी है और झूठी बनाई गई है, इसलिए उसको छुपाया गया 40 साल तक। अब योगी सरकार उसको ला रही है, तो योगी सरकार से हमारा मुतालबा तो यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। लेकिन लोग योगी सरकार का भी मामला ये है कि वो निष्पक्ष के लिए क्या नाम कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए उसने इस रिपोर्ट को मंजर आम पे लाए हैं, ताकि एक साथ जो है वो कांग्रेस और मुसलमानों के दोनों के ख़िलाफ़ महज बना सके। यकीनन कांग्रेस ने उस वक्त जुल्म किया, कांग्रेस की सरकार थी, हम कहते हैं कांग्रेस, उसके लिए कांग्रेस की सरकार पूरी तरह दोषी है, कांग्रेस ने जुल्म किया। लेकिन दूसरी सरकारों का काम यह है कि उससे राजनीतिक फ़ायदा ना उठा के जनता को इंसाफ दिया जाए। आज हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जनता को इंसाफ दिया जाए, जनता को के साथ इंसाफ किया जाए, और हमारी सबसे पहली डिमांड ये निष्पक्ष जांच कराई जाए। 40 साल के बाद में अब जो निकल के ये मुद्दा आ रहा है, इससे पहले क्यों नहीं निकल पाया, क्या कारण था? नहीं, उसका कारण मैंने अभी बताया ना, उसका कारण मैंने बताया आपको कि उसका कारण सिर्फ ये था, उन्हें पता था कि झूठी रिपोर्ट बनाई गई है, पुलिस ने जुल्म किया है, उन्हें मालूम था, पीएसी ने जुल्म किया, उन्हें मालूम था, पीएसी पर 30 साल तक पाबंदी लगाई, उन्हें मालूम था, इसी वास्ते लगाई। थोड़ा बता सकते हैं डिटेल में कैसे मालूम था? सरकार को मालूम था, सरकार को मालूम था, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था, पुलिस को मालूम था, पीएसी को मालूम था कि हमारी गलती थी और हमने मतलब ये कि हम ही मुजरिम हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको दबाए रखा बराबर, इस रिपोर्ट को, और अभी भी ये दबी रहती। लेकिन इस वक्त सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये इन लोगों ने इसको मंजर आम पे लाए हैं। हमारी डिमांड यही है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, अगर वो इंसाफ करना चाहते हैं तो निष्पक्ष जांच कराई जाए। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि चुनाव के टाइम पे इन्होंने ये मुद्दा चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए, और राजनीतिक फ़ायदे का मतलब ये चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए, जिस तरह और मसले क्या नाम पूरे देश में किए जा रहे हैं, कहीं झगड़े फसाद किए जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, आगे लगाई जा रही हैं, और एक ख़ास वर्ग को आगे लाकर और उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें कुल मिलाकर सिर्फ इसकी हैं कि उन्हें राजनीतिक फ़ायदा उसका उठाएं और इलेक्शनों में उसका फ़ायदा उठाएं। पुलिस मार रही है, वो पागल कराई जा रही है। कहीं ना कहीं मतलब आपका इशारा ये भी है कि और जगह भी हत्याएं हो रही हैं, उनका मुद्दा तो दबा दिया गया है, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो कोई भी मुद्दा ऐसा खाली नहीं छोड़ना चाहते। जैसे कि आपका इशारा मणिपुर की तरफ को भी है। मणिपुर में मणिपुर की तरफ ये हत्याएं हुई नूह में को लेकर, उसमें तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन अब इसमें बोलने के लिए सामने आ रहा है। नूह में बड़ा ज़बरदस्त कत्लेआम हो रहा है, वहाँ भाजपा की सरकार है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया एक तरफा तौर पर। तो ये सब मतलब ये बात खुलकर आ रही है कि अगर आप ये कह दें कि चंद लोग दोषी थे साहब नूह के फसाद के लिए, तो सरकार ने घर क्यों उठाए? सरकार ने दोषियों को ना पकड़ के, इसका मतलब ये है कि सरकार भी शामिल है दंगा कराने में, सरकार भी दंगा कराने में शामिल है और दंगाइयों के साथ खड़ी है सरकार। हम भाजपा सरकार को दंगाइयों के साथ खड़े होने का दोषी मानते हैं कि वो दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रही है और दंगाइयों का नाम उनकी मदद कर रही है और उनकी सरपरस्ती कर रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने शनिवार को तरहसी व पांकी प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वे सबसे पहले तरहसी में संचालित मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण मानव दिवस, सृजन, बिरसा हरित ग्राम योजना, रिजेक्ट ट्रांजेक्शन, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि पीएम आवास में 95% से अधिक का कार्य पूर्ण हो गया है। इस पर डीसी ने 100% पूर्ण करने पर बल दिया। साथ ही मानव दिवस सृजन बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने बीडीओ सच्चिदानंद महतो से प्रखंड कार्यालय में कार्यरत मानव बल व प्रखंड क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य उपकेंद्र की भी जानकारी ली। तरसी ब्लॉक के पश्चात उपायुक्त श्री रंजन पांकी पहुंचे। यहां उन्होंने बीएलओ व सुपरवाइजर के साथ बैठक कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने भी सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर को मतदाता सूची का पन्ना वेरिफिकेशन तथा हाउस टू हाउस सर्वे कार्य को जिम्मेदारी पूर्व करने की बात कही।
साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को सफल बनाने में अपना योगदान करने की अपील की। मौके पर प्रशिक्षु आईएएस रवि कुमार, अंचलाधिकारी निर्भय कुमार, सभी बीएलओ व सुपरवाइजर समेत अन्य उपस्थित रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के उतराव थाना क्षेत्र के धनशीपुर गांव में रविवार को भोर में खड़ी ट्रक में कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर और ट्रक आग का गोला बन गए। उसके बाद कंटेनर में लाखों की शराब पाई गई। जानकारी के अनुसार रात को लगभग 2:30 पर धनशीपुर गांव स्थित हाईवे पर एक होटल के सामने खड़ी ट्रक में पीछे से एक कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर आग का गोला बन गया। कंटेनर में लगी आग की वजह ट्रक भी चपेट में आकर ट्रक और कंटेनर धू-धू कर जलने लगे। सूचना पर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी मैफोर्स मौके पर पहुंचकर तीव्र रूप से जल रही कंटेनर और ट्रक को दमकल बुलाकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ट्रक में गत्ता लदा हुआ था, कंटेनर खाली था, लेकिन पुलिस को शराब की गंध आने लगी तो कंटेनर के केबिन में झांका तो वहां भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का जखीरा दिखाई दिया। फिर पुलिस ने भारी मात्रा में लदी अंग्रेजी शराब को कब्जे में ले लिया। वहीं कंटेनर में शराब लदी होने की सूचना पर मौके पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे पुलिस ने डंडे पटक कर भगाया। कंटेनर राजस्थान का बताया जा रहा है। मौका पाकर कंटेनर में बैठे शराब तस्कर भाग निकले। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।